Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we will discuss the concepts of globalization and liberalization of markets of chapter number 4, the market as a social institution, of book Indian Society. Globalization. What is globalization? It is interlinking local, regional, national and international markets. It's in very simple words, globalization means connecting to the whole world, पूरे विश्व से साथ जुड़ना. Globalization refers to the integration of markets in the global economy, leading to the increased interconnectedness of national economies. It means integrating the economy of a country with the economies of other countries under conditions of free flow of trade, capital and movement of persons across borders. Means इसका मीनिंग क्या है कि एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, जिसमें जिसमें कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो, कैपिटल हो, लोगों का जो मूवमेंट है वो भी अक्रॉस बॉर्डर्स जो है उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो. इट इज द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिंग रियल सोशल, इकोनॉमिक, political and cultural transformation of the world into a real global community. It stands for expanding cross-border facilities and linkages, leading to an integration of economic interest and lives of the people living in all parts of the world. कि ये एक ऐसा concept है जो कि सिक्योर करता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड इनटू ए रियल ग्लोबल कम्युनिटी. एक ग्लोबल कम्युनिटी में उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है. और ये स्टैंड करता है एक्सपेंडिंग क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटीज. एक्सपैंड मीन्स बढ़ाना, क्रॉस बॉर्डर मीन्स एक बाउंड्री लाइन से दूसरी बाउंड्री लाइन बॉर्डर से फैसिलिटीज को आपस में एक्सपैंड करना, लिंक्स को आपस में बढ़ाना, इंटीग्रेट करना ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट और लाइव्स ऑफ पीपल. जो लोग अब विश्व के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं उनको आपस में जोड़ना, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जोड़ना, उनकी लाइव्स ऑफ पीपल को आपस में जोड़ना. The term globalization includes a number of trends, especially the increase in international movements of commodities, money, information and people, as well as the development of technology such as in computers, telecommunications, transports and other infrastructure to allow this movement. ये जो concept है इसमें बहुत सारे trends जो हैं वो include होते हैं, especially increase in international movements, राइट, ऑफ कमोडिटीज. किस किस चीज की? कमोडिटीज, मनी, इंफॉर्मेशन, पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसा कि कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्ट्स में हुआ, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर टू अलाउ दिस मूवमेंट. नाउ फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. increasing extension and integration of markets. Markets have increased beyond the boundaries. The integration of market means that changes in one part of a globe may have a profound impact somewhere else far away. For instance, India's booming software industry may face slump if the US economy does badly. For example, 9/11 attack on the World Trade Center in New York, leading to loss of jobs here in India. कहते हैं जो मार्केट्स हैं उनका जो दायरा है बियॉन्ड द बाउंड्रीज, जो हमारी नेशनल बाउंड्रीज है ना, इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, उनसे कहीं आगे है. इट द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मीन्स कि यदि किसी भी पूरे संसार के किसी भी एक जगह की मार्केट में अगर कोई भी बदलाव आता है तो उसका जो असर है, जो इम्पैक्ट है, प्रोफाउंड मीन्स डीप इम्पैक्ट जो है वो फार अवे, बहुत दूर एक जो कंट्री है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है. उदाहरण के तौर पर जो इंडिया की बूमिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो स्लम्प में जा सकती है जैसे अगर यूएस की इकोनॉमी जो है वो फॉल कर जाए. उदाहरण के तौर पर 9/11 का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर न्यूयॉर्क में अटैक हुआ, लीडिंग टू लॉस ऑफ जॉब्स हियर इन इंडिया, जिससे बहुत से भारतीयों की जो जॉब्स हैं वो चली गई. ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन. द सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्रीज and business process outsourcing companies like call centers are some of the major avenues through which India is getting connected to the global economy. Companies based in India provide low-cost service and labor to customers located in the developed countries of the West. कहता है ये जो टेक्नोलॉजी में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस प्रोसेसेस हैं, आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं,
व्हाट इज आउटसोर्सिंग, कि जब कोई एक कंपनी जो है किसी और कंट्री की है और वो अपने ऑफिसेज और दूसरे कंट्रीज में खोलती है जहां पर चीप लेबर है और वहां की लेबर से काम करा लेती है, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। जैसे कि कॉल सेंटर्स, कहते हैं ये मेजर एवेन्यूज हैं जिनके जरिए इंडिया जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट हो रहा है। और कंपनीज बेस्ड इन इंडिया जो है वो लो कॉस्ट सर्विसेज देती हैं लेबर टू कस्टमर्स लोकेटेड इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। reduces cultural barriers, produce services or elements of culture that were earlier outside of the market system are drawn into. An example is the marketing of Indian spirituality and knowledge systems such as yoga and Ayurveda in the West. कि जो कल्चर बैरियर्स हैं उनको खत्म कर देती है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हम एक दूसरे के कल्चर को जानने लगते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट करने लगते हैं और पसंद करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर जो भी सर्विसेज और एलिमेंट्स ऑफ कल्चर हैं जो कि अर्लियर आउटसाइड ऑफ मार्केट सिस्टम थे, अब वो मार्केट सिस्टम में आ गए हैं। उदाहरण के तौर पर इंडियन स्पिरिचुअलिटी जो है या योगा जो है या आयुर्वेदा जो है, जो आज जो है वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा जो है लोग उसे पसंद कर रहे हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। गिवन राइज टू इंटरनेशनल टूरिज्म। An example of growing market for international tourism is the famous animal fair in Pushkar, Rajasthan, to which pastoralists and traders come from different places to buy and sell camels and other livestock. It also suggests how culture itself may become a commodity. ग्लोबलाइजेशन की वजह से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है। उसका एक उदाहरण है जो एनिमल फेयर पुष्कर में राजस्थान में लगता है, जिसमें वहाँ के लोकल लोग और आसपास के रहने वाले ट्रेडर जो हैं अलग अलग जगह से जो आते हैं कैमल्स को खरीदने और बेचने और अदर लाइफ स्टॉक को, और ये सजेस्ट करता है कि कल्चर इटसेल्फ कमोडिटी कैसे बन जाता है। मॉडर्नाइजेशन। Globalization has made it possible. Goods and services around the world are in movement. People in one part of the country are aware of culture, language, lifestyle, music, etc. of the people of another part of the world. It has given birth to modernization. आधुनिकता को जन्म दिया है। Goods services around the world जो है वो सारे मूवमेंट में है। एक जगह की जो बनाई गई चीज़ है वो विश्व के दूसरे कोने में मिलती है। पीपल इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री, एक जगह पर जो रहते हैं वो दूसरी कंट्री के कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, म्यूजिक के बारे में सब जानते हैं। लिबरलाइजेशन। Liberalization refers to the removal or loosening of restrictions on something, typically an economic or political system. Liberalization is any method of how a state raises limitations on some private individual ventures. Liberalization befalls when government laws are loosened. Liberalization का मतलब है कि जो restrictions लगाई गई हैं इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम पर उन्हें हटा देना, उनमें कुछ ढील दे देना। ये वो मेथड है कि जिसमें स्टेट जो है वो लिमिटेशंस को जो है वेव ऑफ कर देती है ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल वेंचर्स। और ये कब होता है? जब गवर्नमेंट जो है अपने जो कानून है उनमें थोड़ी ढील दे देती है। Liberalization includes a range of policies such as the privatization of public sector enterprises, loosening of government regulations on capital, labor and trade, a reduction in tariff and import duties so that foreign goods can be imported more easily, and allowing easier access for foreign companies to set up industries in India. लिबरलाइजेशन जो है वो उसमें रेंज ऑफ पॉलिसीज जो है वो आती हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑन कैपिटल, लेबर और ट्रेड पर उसमें थोड़ी ढील देना, टैरिफ में कमी करना, रिडक्शन करना और इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करना ताकि जो फॉरेन गुड्स हैं वो इजीली इंपोर्ट हो सके, और जो फॉरेन कंपनीज हैं अलाउइंग ईजियर एक्सेस, उनको जो है उनकी जो है आसान कर देना, टर्म्स कंडीशंस को बहुत कम और आसान बना देना ताकि फॉरेन कंपनीज जो हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज दूसरे देश में जाकर के सेटअप कर सके। उदाहरण के तौर पर इंडिया में जैसे फॉरेन कंपनीज हैं वो आकर के सेट कर सके। Marketization. Another word for such changes is marketization, or the use of markets or market-based processes rather than government regulations or policies to solve social, political or economic problems. These include relaxation or removal of economic controls,
privatization of industries and removing government controls over wages and prices. इन सब चेंजेस के लिए एक और वर्ड आता है जिसे क्या कहते हैं, मार्केटाइजेशन, या यूज ऑफ मार्केट्स और मार्केट बेस्ड प्रोसेस बजाय के गवर्नमेंट रेगुलेशंस और पॉलिसीज को जो कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती हैं, उसकी जगह पर मार्केट बेस्ड प्रोसेसेस का जो है वो इस्तेमाल होना। ये इंक्लूड करते हैं रिलैक्सेशन मीन्स ढील देना, या इकोनॉमिक कंट्रोल्स जो है उनको रिमूव करना, इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करना, गवर्नमेंट कंट्रोल जो वेजेस और प्राइसेस के ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसे खत्म करना। Marketization is the act or process of entering into, participating in, or introducing free market economy. Those who advocate marketization believe that these steps will promote economic growth and prosperity. मीन्स फ्री मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा देना मार्केटाइजेशन का मतलब है। और जो इस बात से सहमत हैं लोग, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है कि इस प्रकार की यदि फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी तो उस जगह की इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ, इकोनॉमिक जो है ग्रोथ प्रमोट करेगी उसको, और प्रॉस्पेरिटी, उस इलाके में, उस एरिया में प्रॉस्पेरिटी जो है वो बढ़ेगी। इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। Globalization and policy of liberalization have both positive and negative effects. Now, what are the positive effects? First is it promotes economic growth. It helps in promoting economic growth and prosperity because private industry works more efficiently than government-owned industry. Economic growth को बढ़ावा मिलता है. Increase in foreign investment. The liberalization program has stimulated economic growth and opened up Indian market to foreign companies. For example, any foreign branded goods are now sold in Indian market which were not previously available, resulting in economic growth and employment. जो liberalization policy जो बनी है, उन्होंने जो है इंडियन मार्केट्स को फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन कर दिया। उदाहरण के तौर पर आप भली भांति इस चीज़ का एक्सपीरियंस करते होंगे कि आज हर ब्रांड का जो किसी भी कंट्री में वो प्रोडक्ट बनता है, सब चीज़ें आपको इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि आज से पहले ऐसा नहीं था। और उसके परिणाम स्वरूप देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट और प्रॉस्पेरिटी जो है उसमें जो है बढ़ावा। बेटर क्वालिटी। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज एम्फसाइज ऑन क्वालिटी एंड वर्किंग एफिशिएंसी। क्वालिटी जो है वो हमें बेटर मिलती है क्योंकि वो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिकॉज देयर इज टफ कंपटीशन। Increase in employment opportunities. Due to globalization and liberalization, India has made rapid progress in many fields such as pharmacy, insurance, software, telecom, organized market, banking, etc. People have got jobs in these companies. Opportunities बढ़ गई, areas बढ़ गए, तो उसकी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी बढ़ गई। तो लोगों को इन सब कंपनीज में, इन सब फील्ड्स में जो अलग अलग कंपनियां जो हैं, जो अलग अलग फील्ड्स और नए आ गए, लोगों को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिल गई। नाउ व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स? लीड्स टू टफ एंड अनहेल्दी कंपटीशन. Some sectors of Indian industry like software and information technology may benefit from access to global market, but other sectors like automobiles or oil seeds may lose because they cannot compete with foreign producers. For example, Indian farmers are now exposed to competition to farmers in other countries. कि टफ और अनहेल्दी कंपटीशन है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनमें तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो अदर सेक्टर्स हैं उनमें जो है क्यों हम compete फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर इंडियन फार्मर जो है नाउ उसे अदर कंट्रीज़ के फार्मर के साथ compete करना है। रिडक्शन और विड्रॉन ऑफ सपोर्ट प्राइसेस एंड सब्सिडीज। जो सपोर्ट प्राइसेस और सब्सिडीज थी उसमें लिबरलाइजेशन पॉलिसी ने उन सब चीज़ों को विड्रॉ कर लिया। इंडियन एग्रीकल्चर वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट बाय सपोर्ट प्राइसेस एंड सब्सिडीज। जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर था वो प्रोटेक्ट किससे था? फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट। किस चीज से प्रोटेक्ट होता था? सपोर्ट प्राइस और सब्सिडी से। लिबरलाइजेशन इज अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट interference in market, so support prices and subsidies are reduced or withdrawn. और जो प्रोटेक्शन हमारी थी सब सपोर्ट प्राइस और सब्सिडी, जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी है वो इस प्रकार की गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के अगेंस्ट है मार्केट्स की, इसलिए सपोर्ट प्राइस और सब्सिडीज को रिड्यूस कर दिया गया या विड्रॉ ही कर लिया गया। एज ए रिजल्ट स्मॉल फार्मर्स आर नॉट
एबल टू मेक ए डिसेंट लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो जो छोटे छोटे किसान थे वो एग्रीकल्चर से एक अच्छी लिविंग जो है वो नहीं पा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोर्ट प्राइस एंड सब्सिडी? व्हाट इज सपोर्ट प्राइस एंड व्हाट इज सब्सिडी? Support price, the prices at which the government agrees to buy agricultural commodities. It helps to ensure a minimum income for farmers. एक प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर देती है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए, उससे उनको एक मिनिमम इनकम जो है फार्मर्स को हो जाती है। नाउ दैट इज withdrawn or reduced. Subsidy, the government pays part of the price charged for inputs such as fertilizers or diesel oil. It lowers the cost of farming. गवर्नमेंट जो है कोई आप चीज खरीदते हो उसकी प्राइस का कुछ पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट पे करती है। सपोज करो 10% सब्सिडी है किसी चीज के ऊपर, 10 रुपए प्राइस है, उसके ऊपर 10% सब्सिडी है तो वो 1 रुपया बना, तो आपने 9 रुपए देने हैं और सरकार ने 1 रुपया देना है, तो जिससे कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो दिस वाज इन केस ऑफ फार्मर्स कि जो जैसे सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, डीजल ऑयल है, इसमें सब्सिडी दी जाती थी, उसमें कुछ प्राइस चार्ज जो है वो गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाता था और वो फार्मर्स की कॉस्ट को लोअर कर देता था, जो कि लिबरलाइजेशन के आने की वजह से विड्रॉ कर लिया गया। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, the privatization or closing of public sector industries has led to loss of employment in some sectors and to growth of unorganized sector employment at the expense of organized sector. प्राइवेटाइजेशन से और जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को क्लोज कर दिया गया उससे बहुत से लोगों की कुछ सेक्टर्स में जो जॉब है वो खत्म होगी, एम्प्लॉयमेंट का लॉस हो गया, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है to the growth of unorganized sector employment at the expense of organized sector, क्योंकि जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर आने की वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी खत्म हो गई। फेलियर ऑफ लोकल और डोमेस्टिक यूनिट्स, globalization has led to the failure of domestic units like toys, footwear, handlooms etc. कहते हैं ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से जो है जो हमारे डोमेस्टिक यूनिट से जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल इंडिजीनियस जो इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो गई, फेलियर हो गया उनमें, जैसे कि हैंडलूम इंडस्ट्रीज, टॉयज और फुटवेयर। There is a rapid change in the ways in which goods and services are exchanged due to the liberalization of the Indian economy and globalization. Thank you students and dear friends. I hope you have liked this video. If you have liked, please share and subscribe.